माँ कैसे निकल गई थी अकेले सफर पे, अनजान शहर की अनजान डगर पे। मैंने पूछा था तो माँ ने कहा, चांद, सूरज, चेहरे, हवाएं, रेत, पानी, कचौरी, चाय, ये कभी अनजान नहीं होते। तो माँ की तरह मैं भी राजस्थान निकल पड़ी, खोजने वो जादू की दुनिया जो सामने थी खड़ी। माँ की एक पूरी एल्बम थी मेरे हाथ, उन्हीं पुरानी तस्वीरों का रास्ता था मेरे साथ। और वैसे भी माँ कहती थी, घूमते हुए कोई अकेला नहीं होता। दोस्त होते हैं, सपने, पेड़, गांव, आंखों में चलती हैं झीलें, सर पे तारों की छाँव। तलाश थमती नहीं, मन का लालच है, कुछ और देख लें, आंखों की आदत है। रंग, चेहरे और उनकी हंसी बदलती रही, माँ की तस्वीरों की उंगली पकड़ मैं बस चलती रही। और शुरू भले ही अकेले हो सफर, मिल जाते हैं अजनबी कंधे पे लिए अपना घर। फेलो ट्रैवलर्स, खाना बदोश, वंडरलस्टर्स, जैसे एक मछली में डूबा पूरा समंदर। लोग जुड़ते जाते हैं कहानियों की तरह, रेत भी उड़ती है पानियों की तरह। माँ की तस्वीरें ढेरों थी, दिल का एक पूरा नक्शा बनता था। पर एक तस्वीर ना जाने कहाँ की थी, ढूंढ के भी पता ना चलता था। ऐसे ही लौट जाऊं सोचे बिना, उस तिलिस्मी जगह को खोजे बिना। कभी कभी दिन की रोशनी भी रात जैसे एहसास खोल देती है। मुड़ चल, खुद से कर ले दोस्ती, एक आवाज बोल देती है। और फिर शुरू होता है एक और सफर। चांद, सूरज, चेहरे, हवाएं, रेत, पानी, कचौरी, चाय, साथ चलते हैं नए दोस्त, मन के और बाहर के, थाम के हाथ चलते हैं। राजस्थान
लगे कुछ अपना सा। Hi everyone. Do things for people not because of who they are or what they do in return, but because of who you are. Today is day number 221. We are going to talk about all these important topics in next about 30 to 35 minutes. See, not all tasks are equal. Identify the important ones. Avoid, schedule and do. Time management is not about ticking off our to-do list. It's about redesigning the list to prioritize our important tasks. This is English. Noun. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच. दिस इज नाउन. नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन टाइप इज कॉमन नाउन. Common noun is a noun that denotes a general or common person or thing. For example, this is a house. So this is a common noun. It is a house. Proper noun का मतलब होता है एक particular belonging होती है. The word proper means belonging particularly to somebody or something. For example, this is a proper noun that he is Bob. He is Bob. Collective noun होता है name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole. जैसे do you see the crowd? So crowd is a collective noun. बहुत सारे लोग हैं और ये सब मिलके एक noun form बन रहे हैं. Abstract होता है that denotes some quality, state or action. उसको abstract बोलते हैं. ये आप physically touch नहीं कर सकते. For example, happiness. Happiness is an abstract concept. So this is abstract noun. Material noun होता है things made of matter are called material things and names given to them are called material noun. For example, gold is a metal. Countable noun, you can count those objects. The name of objects, people, etc. that we can count are called countable nouns. There are 3 chairs. Uncountable means you cannot count. For example, bees collect honey. Common things which cannot be counted, उनको uncountable बोलते हैं. Regular nouns होते हैं change from their singular forms to become plurals, their spelling no change. Excess, तो ये एक टाइप हो गया regular nouns का. Irregular noun होता है, irregular noun में change होता है singular to plural, their spelling not change. Okay, तो this is regular and irregular. और possessive noun में ownership होती है. His watch is beautiful. यहाँ दोनों एक जैसा लिखा हुआ है. Let us understand by this concept. For example, this is regular and irregular nouns. For example, singular है bottle, इसमें s लग गया तो वो plural बन गया, तो this is regular. Bottle, bottles, boss, bosses, toy. तो singular to plural बन रहा है with the addition of some word s. Irregular में ऐसा कोई direct rule नहीं होता है. For example, men, calf, calves. Simply by adding s हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. तो ये हो गया रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स. इस तरीके से हम डेली वी विल ट्राई टू डू सम एफर्ट्स, पुट सम एफर्ट्स इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज. Similarly, CSAT is also very important. 1/2 of a 2-digit number exceeds its 1/3 by 6. What is the sum of the digits of the number? ये अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है. मैथ्स में कन्वर्ट करना है तो लेट अस अज्यूम द नंबर इज x. अब दिया है 1/2 of a 2-digit number exceeds its 1/3 by 6. तो x का हाफ कितना होता है x/2, x का 1/3 कितना होता है x/3 और कंडीशन कितना दिया है x/2 minus x/3 is equal to 6. So solve it. x is equal to 36. So sum of digits हो गया 3 plus 6 that is 9. This is Prelims 1 course. Prelims 1 course एक dedicated comprehensive course है. हम टारगेट कर रहे हैं 26 मई 2024. ये एक ईयर लॉन्ग कोर्स है. फाउंडेशन कोर्स आप इसको बोल सकते हैं. सिस्टमेटिकली, रेगुलरली, डिसिप्लिन के साथ और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक हम सारा ये 7 पिलर्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं. इसकी क्लासेस होती है सुबह 11 बजे. सेकेंड जो कोर्स है वो मेंस के लिए है. मेंस की क्लासेस होती है शाम को 9 बजे. सो दीज आर 2 डिफरेंट कोर्सेज और इसमें एक फ़ी रिक्वायर्ड होगा. प्रीलिम्स के कोर्स की फ़ी है 5555 और मेंस के कोर्स की फ़ी है 1111. मेंस का कोर्स हम 15 सितंबर को टारगेट कर रहे हैं और प्रीलिम्स हम टारगेट कर रहे हैं 26 मई 2024 को. इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी नए इनिशिएटिव्स भी ऐड ऑन होने वाले हैं. इनको मैं सिविल सर्विसेज 1 में अनाउंस करूँगा 15 अगस्त को. ओके,
सो अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सी न्यूज़पेपर हम सुबह 10 बजे ही करने का ट्राई करेंगे। इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाता है, सेकंड टाइम बेटर मैनेज हो जाता है। शाम को न्यूज़पेपर इट्स डिलेड, वी विल ट्राई टू कीप इट इन द मॉर्निंग 10 AM और फर्दर इसको और रिफाइन एंड क्रिस्प करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। The most important part in this examination or in any examination, it is not about intensity, it is about consistency. Intensity, motivation 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, डेली नहीं होता है। And you ask anybody, अगर हमें extraordinary success चाहिए, so you have to be consistent, you have to be hardworking, you have to have certain gratitude as well. You know, हमें process पे believe करना चाहिए। दिस इज पाकिस्तान पार्लियामेंट टू बी डिसॉल्व टू सेट स्टेज फॉर इलेक्शन। तो पाकिस्तान में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी और फिर नए जनरल इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज मणिपुर में अभी होम मिनिस्टर ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि सच टाइप ऑफ वायलेंस इज नॉट ओके, डिवीजन इनसाइड द कंट्री इज नॉट ओके। हॉटस्पॉट्स ऑफ स्ट्राइफ में जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट एट्सेट्रा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हॉटस्पॉट्स होते हैं। सो एथनिक वायलेंस इज शेमफुल, एथनिक वायलेंस इज शेमफुल। और जो विमेन पे एट्रोसिटीज हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी शेमफुल। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल होना चाहिए एंड एनी टाइप ऑफ इरेगुलरिटी शुड नॉट बी टॉलरेटेड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट वन, panel flags shortage of fertilizers, terrorism related this Jammu and Kashmir, and this is develop indigenous web browser, grab cash prizes। See, indigenization पे हम बहुत emphasis डाल रहे हैं। ये जो वेब ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, फायरफॉक्स मोजिला है, एप्पल का सफारी ब्राउज़र आता है, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। DuckDuckGo is another browser. The point is browser is a window जिससे हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। अब ये विंडो अगर इंडिजिनस नहीं है तो देर आर टाइम्स कि इसमें प्राइवेसी ऑफ यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अक्सर जो काफ़ी पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं इनमें एलिगेशन यही होता है कि दे ट्राई टू मॉनिटर योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड दे ट्राई टू यूज़ योर डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स। सो दैट इज़ वाई एक तो एडवर्टाइजमेंट्स है, प्राइवेसी का इशू है, दूसरा यहाँ पर साइबर अटैक्स एंड अदर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जितना इंडिजिनस होंगे उतना ही बेहतर है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम माया अभी लॉन्च हो रहा है फॉर ऑल लाइक डिफेंस पर्सनल, डिफेंस स्टेशंस एट्सेट्रा में विंडोज़ के बजाय ऑपरेशन दिस OS माया होगा। तो सिमिलरली वी वांट इंडिजिनस वेब ब्राउजर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया आप इंडिजिनस ब्राउजर्स लाइए और आपको 3.4 करोड़ तक का प्राइजेस यहाँ पे मिलेंगे। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर, जैसे SSL होता है। आप वेबसाइट्स भी विजिट करते हैं ना, वहाँ पे HTTPS होना ज़रूरी होता है। ये उसको थोड़ा और वेरीफाइड और ऑथेंटिक बनाती है, फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स नहीं होती। सो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जैसे SSL सिग्नेचर्स है, ये क्या है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर्स के सर्टिफिकेट्स है। इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये डेटा ट्रांसफ़र इन बिटवीन ट्रैप भी नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन हैक भी नहीं होना चाहिए। सो ब्राउजर नो टू ट्रस्ट दीज सर्टिफिकेट्स इफ दे आर इशूड बाय अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इज इन टर्न ट्रस्टेड बाय अ रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और कई बार जो इंटरनेशनल वेब ब्राउजर्स एट्सेट्रा है वहाँ पे ये डिफ़िकल्टी हुआ है कि वो सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे हैं या फिर डिस्कॉर्ड हो रहा है, वहाँ पे ऐसी चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे फायरफॉक्स स्टॉप ट्रस्टिंग इंडिया CCA इन देयर रूट स्टोर रिपोजिटरी। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भी बोल रहा है कि वी वांट इंडिजिनस वेब ब्राउजर्स, इंडिजिनस वेब ब्राउजर्स। तो उधर ये इनिशिएटिव है, डेवलप इंडिजिनस वेब ब्राउजर्स एंड डेवलप एंड ग्रैब कैश प्राइजेस। So this is the front page of the Hindu. Orbit reduction maneuver of Chandrayaan 3 performed. ISRO का थर्ड मून मिशन अभी केवल 1437 किलोमीटर दूर है मून से। नेक्स्ट ऑपरेशन अगस्त 14 को स्केड्यूल्ड है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी अगस्त 23 को। सो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है बाय टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु। अभी 1437 किलोमीटर हम दूर है। ये हमारा थर्ड मून मिशन है चंद्रयान 3। ओके, देन
द नेक्स्ट वन इज दिस इज मिशन प्रोग्रेस मैनूवर हो रहा है पोलर डार्क साइड. लेट अस वेट फॉर August 24th. अब जो नेक्स्ट है दिस इज इलीगल फायर आर्म सीज नियर ओडिशा सिमलीपाल. यहाँ पर पोचिंग भी होता है, पोचिंग एंड जो वाइल्ड एनिमल्स का स्मगलिंग एट्सेट्रा. और आजकल पोचर्स एंड स्मगलर्स भी काफ़ी हाईटेक वेपन्स लेके हंटिंग एंड पोचिंग के लिए आते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है. Number of elephants in Karnataka goes up by 364 from last count, touches 6,395. तो this is good. ये है elephants. प्रोजेक्ट एलिफेंट. आप बताइए इंडिया में कितने राज्यों में एलिफेंट्स मिलते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स. एलिफेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और डिफरेंस बताइए इंडियन एलिफेंट मतलब एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस होता है. कल हम लायन के बारे में भी जानेंगे, अभी लायन डे भी आ रहा है. दैट 70s शो. यहाँ पे बात है कि अभी लैपटॉप्स पे बैन लग गया है. मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप जो रेडीमेड बाहर से हम इंपोर्ट करा रहे थे उसमें सर्टेन ड्यूटी लगेगी और रिस्ट्रिक्शंस होंगे. तो क्या हम प्री 1991 इरा एलपीजी इरा का लाइसेंस राज में तो शिफ्ट नहीं होते जा रहे. प्रपोज्ड लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट डेंट्स इंडियाज क्रेडिबिलिटी. एक सडन और शार्प शिफ्ट हुआ इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया restriction on imports of laptops, personal computers, tablets, servers and making it compulsory for importers to secure a license. So अक्सर foreign manufactured laptops etc. इंडिया में आ रहे थे, अब इनमें एक restriction आ गया है. ये जो कर्व है वो इमीडिएट इफेक्ट से आया और इससे एंटायर सप्लाई चेन, शिपमेंट जो ट्रांजिट में थे उन पर भी ये इम्पैक्ट लगा. तो फियर ऑफ शॉर्टेज हुआ, प्राइस सर्जेस हुआ और एक फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट देखने को मिला. तो गवर्नमेंट ने इसको अभी पोस्टपोन कर दिया है. अब ये जो डेट है ये फर्दर नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है. तो द पॉइंट इज कि इंडिया को एक ह्यूज लॉसेस भी होता है, बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे टैबलेट्स लैपटॉप्स इंडिया में नहीं होता है तो रेवेन्यू फॉरगॉन हो रहा है. So we are kind of like pushing the companies to come to India and manufacture their products in Indian soil. But अगर इस तरीके से नी जर्क रिएक्शन हम लेंगे तो इससे इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज और इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर भी एक सवाल उठ जाता है. जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है उस पर सवाल उठ जाता है. सो दैट इज़ वाई इंडिया को एक मिडिल वे फाइंड करने की ज़रूरत है. सेंसिंग अ बैकलैश द गवर्नमेंट वेंट इन टू डैमेज कंट्रोल, डिफरिंग द कर्ब्स टिल November 1. Promising expeditious approvals to license requests. So the point is license will be there, but ऐसा भी नहीं है कि हम 1991 के पहले के दौर में जा रहे हैं. The whole idea is we want companies to manufacture their electronic goods in Indian soil. तो let us see, डायरेक्ट कंपैरिजन सही नहीं होगा 1991 से. Look at this number. This is $5.3 billion का नंबर. This is huge number. और इंडिया में जिस तरीके से स्पेशली कोविड-19 के बाद लैपटॉप्स टैबलेट्स का रिक्वायरमेंट बढ़ा है, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं तो ये एक ह्यूज लॉसेस हो रहा है और हम जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितना बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है. ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है वियतनाम से, चाइना से एट्सेट्रा से. सो वी वांट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स इन इंडियन सॉइल. सो इस तरीके से 28% जो GST अभी गेमिंग पे भी आया है, ऑनलाइन गेमिंग पे. तो द पॉइंट इज़ कि ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है ये ज़्यादा स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूड रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा. अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, एक्सेसिव टैक्सेशन एंड a return to maximum government can derail India's reform story. So there is a concern as well. Chasing consensus है, international community can push Russia and Ukraine towards talk. तो अभी 42 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था जेद्दा सऊदी में और सीरियस एफर्ट्स डाले गए वर्ल्ड में यूक्रेन क्राइसिस को एंड करने के लिए. ऑल्दो यहाँ पे यूक्रेन इनवाइटेड नहीं था, रशिया इनवाइटेड नहीं था, बट यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन हुआ. प्राइमरली ये कंसेंसस इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ फोकस ग्लोबल साउथ पे था. ग्लोबल साउथ मतलब इंडिया भी आ गया, चाइना भी आ गया. यूक्रेन की सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दैट देयर वाज अग्रीमेंट टू मीट अगेन. तो चाइना इससे पहले जून में अवे था, बट अभी प्रिकर्सर जो था वहाँ पे नहीं था. बट इस बार चाइनाज पार्टिसिपेशन दिस टाइम अलॉन्ग विद इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो एक वेटेज बढ़ गया है कि वर्ल्ड नेटो और रशिया की जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंसियर है. तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हुआ.
सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात थी। चाइना और इंडिया बड़े प्लेयर्स हैं। रशिया के साथ डिस्पाइट दिस स्पेशल ऑपरेशन जो रशिया ने यूक्रेन में किया है, चाइना और इंडिया एंड चाइना दोनों के कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ। सो दैट इज़ वाई वर्ल्ड अभी ये रिकॉग्नाइज भी कर रहा है कि रशिया से बात करने के लिए इंडिया एंड चाइना, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। सो यूक्रेन का मच अवेटेड काउंटर ऑफेंसिव भी वर्क नहीं कर रहा है। जो वॉर है वो काफ़ी हद तक स्टेलमेट की तरफ पहुंच रही है। सो वर्ल्ड अब सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। द कमिंग टुगेदर ऑफ यूक्रेन्स वेस्टर्न backers, neutral developing powers, and Russia's close partners. So this could be the first step in building this consensus. Okay. Then this is political. This is also यूक्रेन में जो क्लस्टर बॉम्ब डाले जा रहे हैं, तो उस पर भी ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इस तरीके से यूक्रेन को हाईटेक वेपन्स प्रोवाइड कराना बाय नेटो, क्या ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है रशिया के साथ? So this is anatomy of riots. Riots are not okay. Claims of peace in Jammu and Kashmir. Then increase in India's toy export बढ़ा है. Number of children refugee enrolled in Mizoram schools. Now see, this is the problem. War होती है, disturbances होते हैं, and price कौन पे करता है? सबसे बड़ी प्राइस पे करते हैं बच्चे. So that is why it is our responsibility कि ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, चाहे वो वॉर है या फिर पैंडमिक है या फिर राइट्स हैं या फिर ethnic clashes etc. है, we need to safeguard the most vulnerable section of our society, और वो होते हैं बच्चे. Additional amount of wheat to be sold by union government, ताकि ओपन मार्केट सेल स्कीम होगा प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए. जीएसटी लगाया हुआ है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज एंड हॉर्स रेस क्लब्स में 28% जीएसटी. सरप्लस अर्न किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, ये SMR है. इस पे अभी बातें चल रही है, अभी कुछ फॉर्मुलाइज नहीं हुआ है कॉन्क्रीट. SMR क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए. ये बात है न्यूक्लियर रिएक्टर की. ये लार्ज कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जैसे इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट्स हैं बहुत सारे, रावत भाटा हो गया, कलपक्कम हो गया एट्सेट्रा. ये लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर है, ये 700+ मेगावाट तक के हो सकते हैं. इनको बनाने में ह्यूज कैपिटल लगता है, ह्यूज एनर्जी भी जनरेट हो रहा है, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्लियरेंस और रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है. इनसे छोटे होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. ये मॉड्यूलर होते हैं तो इनको हम बहुत जल्दी फिक्स भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं, और रिलेटिवली यहाँ पर थ्रेट कम रहता है. रिलेटिवली इनको एसोसिएटेड रिस्क के, डिजास्टर्स के रिस्क के कम होते हैं. फिर एक माइक्रो रिएक्टर भी आ रहा है अप टू 10 मेगावाट. सो द आइडिया इज वी नीड टू गो टूवर्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बट हम उसको मॉड्यूलर और स्मॉल स्केल रिएक्टर्स में अब फोकस करें. तो सेवरल कंट्रीज आर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, मैक्सिमम कैपेसिटी 300 मेगावाट की है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट से काफ़ी कम है. ये सेफली इंस्टॉल्ड हो सकते हैं ब्राउन फील्ड में भी. आप बताओ ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड में क्या डिफरेंस होता है? सो ये ब्राउन फील्ड साइट्स में भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं. स्ट्रिंजेंट जोनिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है कन्वेंशनल एनपीपी के कंपैरिजन में. तो इनकी जो डिज़ाइन होती है, ये लो एनरिच्ड यूरेनियम इन्हें चाहिए होता है, जो कि सारी यूरेनियम माइंस और जो कंट्रीज़ जहाँ यूरेनियम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट है वो इजीली प्रोवाइड भी करवा सकती है. ये मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं फैक्ट्री में और असेंबल किए जाते हैं साइट में, तो इससे टाइम एंड कॉस्ट ओवररन भी नहीं होता है. सो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. देन दिस इज नो योर इंग्लिश, आवर हेरिटेज इंडियन समर के बारे में. देन स्ट्राइव, स्ट्रोव पास्ट हो जाता है, इट इज स्ट्रोव, द पास्ट पार्टिसिपल इज स्ट्रिवन. देन वल्गर, वल्गर जो होता है इट इज़ लाइक इनअप्रोप्रिएट थिंग, कॉमन पीपल कॉज इन मैनर, इनडिसेंट, ऑब्सीन है, सो दैट इज वल्गर. मॉब इज ऑल्सो नॉट ओके, मोबोक्रेसी नहीं होना चाहिए. मॉब जो होता है दिस इज अगेन भीड़ को मॉब बोलते हैं, जो एट टाइम्स रॉन्ग भी हो सकती है. मियंडर का मतलब जैसे रिवर ऐसे मियंडर करती है, मूविंग स्लोली इन नो पर्टिकुलर डायरेक्शन और विद नो क्लियर पर्पस. China goes 10 months without envoy in India. This is again a big development. Jammu and Kashmir Constitution limited executive power of Union of India, says Supreme Court. बहुत अमेजिंग डिस्कशन चल रहा है अभी आर्टिकल 370 पे. जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम इसको बहुत अच्छे से फॉलो अप करेंगे. सो सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने कहा, वॉज इट नेसेसरी टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज सम अदर कॉन्स्टिट्यूशन?
तो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है वो वेल विद इन द राइट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडियन लॉ मेकर्स है. वॉज इट नेसेसरी टू इम्पोज फैटर्स ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट? लेट अस वेट एंड वॉच. देन दिस इज सी, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस. तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, रूल 198 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में. और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि जो लोकसभा में आप पे जवाबदेही होना चाहिए, अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट को तो रिजाइन करना पड़ता है. सो नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक 28 आए हैं. हाईएस्ट नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आए थे. एक बार केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन ने ट्रिगर किया है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई गवर्नमेंट और उसको रिजाइन करना पड़ा, ओनली वंस. 79 में मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड टू हिज रेजिग्नेशन इवन एज द डिबेट रिमेन्ड इनकॉन्क्लूसिव 1979 में. देन 3 बार नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स दैट फेल ड्यूरिंग द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज अ मोशन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए मोशन लाए बट वहां पे डिफीट हो गया. वीपी सिंह साहब मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर इज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट भी डिफीट हुआ था एचडी देवेगौड़ा साहब के टाइम पे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने. 1 वोट से सरकार गिरी थी इस टाइम पे. तो दिस इज लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन बिकॉज इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए लोकसभा के लिए. ओके, देन दिस इज नेक्स्ट वन. राज्यसभा पासेस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है. ये राज्यसभा से भी पास हो गया है. राइट टू प्राइवेसी इसमें प्रायोरिटाइज किया गया है और पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग पे आपका अधिकार होगा जिसने वो डेटा जनरेट किया है. सो लेट अस सी इस पे अभी हम फिर से बात करते हैं. टू कर्ब प्राइस राइज सेंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल. तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा रही है ताकि जो इंक्रीज डिमांड है या शॉर्टेज है उसका इम्पैक्ट प्राइस इन्फ्लेशन नहीं. सेंटर वॉन्स स्टाफ अगेंस्ट टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट मार्च. एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बोल रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसीजंस को किस तरीके से आप वोकली या किस तरीके से आप रख रहे हो उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म या अपनी बातों में. तो सेंटर वॉन्स स्टाफ अगेंस्ट टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट मार्च. बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट आप लोग भी अगर ट्राई करो प्रो गवर्नमेंट होने का तो ये बेहतर होता है. प्रो गवर्नमेंट का मतलब प्रो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है. प्रो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना है, हमें प्रो गवर्नमेंट बनना है. प्रो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है यू बिलीव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू बिलीव इन अवर इंस्टीट्यूशंस जैसे जुडिशरी हुआ, पार्लियामेंट हुआ या फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है. तो जो आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो सरकारी तंत्र पे भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा, वरना फिर आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो? जब आपको भरोसा ही नहीं है देन व्हाई यू वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब? ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है. सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट हैव दिस एक्टिविस्ट या ओवरटली क्रिटिकल माइंडसेट. वी शुड हैव फेथ इन इंडियन डेमोक्रेसी, वी शुड हैव फेथ इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर से, और उसमें सुधार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. So this is Defense PMJAY as CAG audit exposes multiple frauds. So there are challenges. कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती है. गवर्नमेंट वर्क इज ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ, बट द आइडिया इज वी नीड टू ट्राई टू मेक इट बेटर. हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट टू एंश्योर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन फर्टिलाइजर. चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेशन हो रहा है. आप बताओ डिफ्लेशन क्या होता है? एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन, दूसरा वर्ड होता है डिफ्लेशन, और तीसरा एक और वर्ड बताइए रेसेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड रेसेशन. एक्सप्लेन दीज 3 कीवर्ड्स. मेंस में अभी हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले. देन फ्रॉड इन द नेम ऑफ कस्टम, LIC, 2-व्हीलर EV, देन EID, IT सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. वीट अभी बल्क में इंडिया 5 मैट्रिक टन सप्लाई करेगा. देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़. वर्ल्ड न्यूज़ है, दिस इज बेलारस एंड दिस इज श्रीलंका. UK वोटर डेटा हैक्ड बाय हॉस्टाइल एक्टर्स. Australia to be testing ground for US missiles. Now see, this is important. AUKUS पैक्ट आ रहा है. AUKUS पैक्ट में न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया को वेपन सप्लाई भी हो रहा है, US सप्लाई वेपन्स ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया और इधर चाइना, सोलोमन आइलैंड. तो US ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बिकॉज अ डेमोक्रेसी, क्लोजर टाइज विद वेस्टर्न डेमोक्रेसी सिस्टम जैसे US एंड UK. सो ऑस्ट्रेलिया को प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर. Amazon nations to jointly fight deforestation.
जितने भी इक्वेटोरियल एरिया है 0 डिग्री वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, अमेजॉन नेशन टू जॉइंटली फाइट डिफॉरेस्टेशन। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स। अब जो नेक्स्ट है वो है इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू रिमूव एनिमल्स फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग। तो अभी एक लॉ आया है, ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, कोई भी मेडिसिन है तो हम उसे रैट्स में रैबिट्स में ट्राई करते हैं, इन पे टेस्टिंग करते हैं। तो ये क्या एनिमल एट्रोसिटीज़ नहीं है, क्रूएलिटी नहीं है। तो अब ये बात आ रही है इंस्टेड ऑफ एनिमल्स हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से आर्टिफिशियल ह्यूमन ऑर्गन्स बना लें या सिमुलेट कर लें और वहाँ ड्रग की टेस्टिंग कर लें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो गई है। 3D ऑर्गेनॉइड्स हैं, ऑर्गन्स ऑन चिप्स हैं, एडवांस्ड कॉम्पिटिशनल मेथड्स है, सेफ्टी एंड एफिकेसी न्यू ड्रग्स की बेहतर हो जाएगी। सो ये लॉन्ग टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं। रोडेंट, नॉन रोडेंट, कैनाइन, प्राइमेट्स पे हम काफ़ी सारी मेडिसिन ट्राई करते हैं, वैक्सीनेशंस, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। अब बात यह है कि जैसे हमें डिसीज़ेस की या फिर हमें बहुत सारे फैक्टर्स भी फैक्टर इन करने हैं कि किस एज ग्रुप में क्या इम्पैक्ट होगा उस डिसीज़ का, जैसे कि एज, सेक्स, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, जेनेटिक्स, डाइट्स एक्सेट्रा। तो हम लैब ब्रेड एनिमल स्पीशीज़ के बजाय हम ऑर्गेनॉइड्स या ऑल्टरनेटिव टेस्टिंग मोड्स को ध्यान दें। ऑर्गेनॉइड्स क्या होते हैं, मिनी ऑर्गन्स होते हैं जो लैब में बनाए गए हैं और उनमें हम टेस्ट कर लेते हैं, जैसे हार्ट को लैब ऑर्गेनॉइड से टेस्ट कर लिया, लिवर, किडनी एक्सेट्रा। सिमिलरली ऑर्गन ऑन अ चिप भी एक टेक्नोलॉजी है, इसमें भी हम माइक्रो चैनल्स बनाते हैं, मिमिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स का वर्क मिमिक करते हैं और उस पर हम मेडिसिन एंड रिसर्च एक्सेट्रा कर लेते हैं। 3D बायो प्रिंटर्स भी है, एडिटिव टेक्नोलॉजी है। सो दीज ऑल आर चैलेंजेस कि हम एनिमल्स पे बजाय सीधा सीधा ह्यूमंस को बेटर मिमिक करते हुए हम उस पर टेस्टिंग करें। ओबेसिटी ड्रग्स वेटिंग टू हिट द मार्केट। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है। वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वजन ज़्यादा है तो यू आर इन्वाइटिंग ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस, सो वेट शुड ऑल्सो ऑलवेज बी कंट्रोल्ड। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। अभी हम आंसर डिस्कशन देखते हैं 3 अगस्त का। इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट यू शुड राइट एटलीस्ट 6 पेजेस ऑन डेली बेसिस। स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स तो लिखना ही चाहिए आपको। आप 6 पेजेस रोज लिखो, अपने आप राइटिंग ठीक होगी, पढ़ाई बेहतर होगी, ठहराव आएगा, कंसिस्टेंसी होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगा। बेनिफिट ही बेनिफिट है। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी रेगुलर, राइट 6 पेजेस ऑन डेली बेसिस। अभी हम प्राइम मिनिस्टर्स की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियन स्लम्स और 5G टेक्नोलॉजी में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना था। PYQs भी मैंने आपको बताया मेंस के PYQs में कि किस तरीके से अगर हमारे पास ये कीवर्ड्स प्रिपेयर होते हैं तो हम बहुत अच्छा आंसर लिख पाते हैं। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, एवरीबडी शुड राइट। अब इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रियंका। देखो प्रियंका ने कितने अच्छे से लिखा है। 5G टेक्नोलॉजी क्या होता है, पहली 2-3 लाइन में बता दिया व्हाट इज़ 5G। एरो की हैबिट नहीं डालें, हम हमेशा नंबर लिखें। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा होता है एरोज एटसेट्रा नहीं करना है, हम यहाँ नंबर लिखें 1 2 3 4 ABCD, फॉर्मल वे में लिखें। लेटेंसी बताया, सी दिस इज़ वेरी गुड। 5G के बेनिफिट्स क्या है, तो ये विजुअलाइजेशन अच्छी बात होती है। चार्ट्स बनाएं या नंबर लिखें 1 2 3 4 5। वेरी गुड, दिस इज़ रियली गुड, वेरी गुड प्रियंका। इंडियन स्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें हम एक डायग्राम भी बना सकते थे, 5G टॉवर्स ऐसा कुछ थिंक। दिस इज इंडियन स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं, फैक्ट्स बताए, रीजंस बताए। वेरी गुड। इंडिया में एग्जांपल्स, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है और फिर इनमें कैसे सुधार करे गवर्नमेंट इनिशिएटिव। वो भी आपकी स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी है, वेल डन। चंदन, सी दिस इज सो नाइस। इंडियन 5G टेक्नोलॉजी क्या है, सारे पॉइंटर्स बता दिए, एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स, चैलेंजेस। सी दिस इज सो कॉम्प्रिहेंसिव, नंबर लिखे 1 2 3 4 5। हेल्थ केयर भी बहुत अच्छे से बताया, दिस इज़ वेरी गुड चंदन, दिस इज़ रियली रियली गुड। हेल्थ है, वे फॉरवर्ड है, चाइल्ड एजुकेशन भी बताया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, फैंटास्टिक। तो इट इज़ द वे कि हम वाइड रेंज ऑफ अपने थॉट्स एक्सेट्रा सबको एक जगह कंपाइल किया। आपने IVC सब कवर कर लिया, सारा बैकलॉग कवर कर लिया, वेरी गुड। सी दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड चंदन, दिस इज़ अ रियली गुड वर्क। अपने यहाँ पे सारे एक ही साथ सारे कंप्लीट कर लिए, फैंटास्टिक। अब ऐसा हमें रेगुलर रहना है। पूजा, दिस इज सो गुड, राइटिंग बहुत अच्छी है। 1 2 3 4 जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया। तो देखो हमने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस भी पढ़ लिया, तो हम ऐसे करके 1 बाय 1 सारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जानने वाले हैं। शीतल, दिस इज गुड, जवाहरलाल नेहरू जी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देन उनका पूरा डेटा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। ऐसे करके आपने पूरा कंपाइलेशन कर लिया।
प्री इंडिपेंडेंस भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, फैंटास्टिक। नंदिनी दिस इज गुड। तो ऐसे 1 बाय 1 इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में हमें जानना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज गुड, वेरी गुड। तो ये होमवर्क ज़रूरी होता है, हम खुद से चीज़ों को पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आता है। स्पून फीडिंग का वैसे भी एग्जाम नहीं है। दिस इज गुड नंदिनी। 5G देखो, ये डायग्राम इज सो गुड, डेटा भी है, फैंटास्टिक। दिव्या दिस इज गुड, बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया आपने, देन आपने कंट्रीब्यूशन बताया, नंबर लिखिए 1 2 3 4 5, वेरी गुड। सृष्टि बहुत अच्छा वर्क होता है आपका, एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है। प्रोफाइल, एजुकेशन, सी द प्रेजेंटेशन, दिस इज गुड। इस एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। 20 पॉइंट है, तो दिस इज अ फॉर्मल वे, डॉट नहीं लगाना है, एरो नहीं लगाना है, पॉइंट्स 1 2 3 4, हेडिंग, सब हेडिंग, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड सृष्टि। देन सी, सारा टॉपिक तैयार हो गया। दिपेश दिस इज गुड, अवर क्वालिटी इज रियली गुड, स्टूडेंट्स आर रियली ऑसम। आप ज्वाइन करो, पीयर के साथ प्रिपेयर करो, पढ़ाई आइसोलेशन में नहीं होती है, वेरी गुड। दिपेश दिस इज रियली नाइस। इंडियन स्लम्स के बारे में बताया आपने, गुड, वे फॉरवर्ड। 5G टेक्नोलॉजी भी है, फैंटास्टिक, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है हमें। जवाहरलाल नेहरू जी, नेहा वेरी नाइस। अर्ली लाइफ, सारा डेटा सेट तैयार हो गया, क्रोनोलॉजिकल मैनर में बताया, बुक्स भी आ गई, वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या था वो भी बताया, फैंटास्टिक। स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स में सॉल्यूशंस पे हमें बहुत ध्यान देना है, बिकॉज स्लम्स में इंडियन गवर्नमेंट वांट्स कि हम आइडियाज बताएं स्लम के चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। 5G टेक्नोलॉजी इज अगेन वेरी अब देखो यहाँ पे जर्नी क्रोनोलॉजी बताया, गुड, वेरी गुड, जर्नी ट्रेस किया, एंड क्या स्कोप है 5G टेक्नोलॉजी का, फैंटास्टिक। मंजू दिस इज गुड, सी दिस कॉपी, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी सिस्टमेटिक कॉपी, वेरी गुड मंजू। सो एवरीवन, हम अच्छा लिखते हैं बट उसके साथ साथ हमें वहाँ पर अच्छा लिखते हैं बट साथ साथ हमें उसके प्रेजेंटेशन में भी बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लम ड्वेलर्स के बारे में आपने लिखा, वेरी नाइस। एंड दिस इज 5G नेटवर्क, बिकॉज यू नो जैसे हम देखते हैं पैकेजिंग कैसी है चीज़ों की, हम मार्केट में जाते हैं, पैकेजिंग इज गुड, तो वी टेंड टू लाइक गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। सो यू शुड राइट वेरी नीट एंड क्लीन। प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, कंटेंट भी अच्छा रखना है, प्रेजेंटेशन भी रखना है। राम नरेश दिस इज गुड, वेरी नाइस। सी, बहुत अच्छी कॉपी रहती है, एंड पॉइंट्स देखिए कितने एग्जॉस्टिव पॉइंट्स है, मेंस में बस यही काम आता है, वेरी नाइस। सी दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल कॉपी, वेरी गुड राम नरेश, दिस इज रियली नाइस। इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। 5G सृष्टि, सी स्पेक्ट्रम क्या है, अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है, टैबुलेट कर दिया आपने, वेरी गुड। डिफरेंस बताने के लिए, डिसएडवांटेजेस है, वे फॉरवर्ड है, फैंटास्टिक। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखा, वर्षा ने बहुत अच्छे से बताया, वेरी गुड। वर्षा आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू करना है फोकस्ड वे में, ओके। पॉलिसी ऑफ बीइंग टू कॉशियस इज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ऑल, फैंटास्टिक, इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। जवाहरलाल नेहरू जी, हरजिंदर दिस इज गुड। एजुकेशन, कॉन्ट्रीब्यूशंस बताया आपने, तो सी अगर आप ये कॉपीज ही पढ़ लोगे, देख के भी लिख लोगे, तो भी आप फायदे में रहोगे, यू शुड पार्टिसिपेट। हरजिंदर दिस इज गुड। फैक्टर्स क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। इनकम जनरेशन एटसेट्रा, इंफ्रा। 5G के बारे में भी बताया, टेक्निकल टॉपिक था ये 5G, और इसमें डायग्राम्स भी हमें लिखना है, डेटा डायग्राम साइंस के तरीके से लिखना है। इंडियन स्लम्स, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। आप बहुत अच्छा लिखते हो, इसको कंटिन्यू करना है। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे ना, उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, जल्दी जल्दी लिखना आएगा, और मेंस आपके लिए बहुत आसान रहेगा, वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी नाइस आंसर, फैंटास्टिक, वेरी गुड सृष्टि। सी चैलेंजेस बताए, दिस इज एंटायर पूरा केस स्टडी की तरह हमने कवर कर लिया है ऐसे, दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। रफ़ी दिस इज गुड। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताया आपने, 5th जनरेशन, डिफरेंट बैंड्स, वेरी नाइस। सी यूजेस, अब देखो जितना लिख रहे हैं उतना ही रिफाइनमेंट आ रहा है, तो राइट 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 6 पेजेस डेली बेसिस पे लिखना है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी बताया, उनकी प्रोफाइलिंग, वर्क क्या एसोसिएटेड वर्क है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड फ्रीडम स्ट्रगल में भी, गुड राम नरेश। दिस इज इंडियन, अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है लिखने का, गुड। तो प्रेजेंटेशन, विजुअल्स बहुत अच्छे हमें यहाँ पे रखने हैं, डायग्राम्स, विजुअल्स एटसेट्रा, ओके। सो ये सारी सबमिशंस हैं, बहुत अच्छे से आपने लिखा है राम नरेश। 5G टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे कवर किया, तो एवरीवन राइट, everyone right. If you are even writing, you are better than 99% of students, I am telling you again and again,
Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.